Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your Professor Nilesh Anandwani. Again back with a new chapter. So today's our topic is beginning of a chapter, that is chapter number 19, excretory product and their elimination. One of the most valuable chapter amongst the unit number 5, that is a human physiology, and this chapter is very valuable in NEET point of view, NEET exam point of view. So let's begin with this chapter. So in this lecture I am going to explain you the introduction of the excreted product and their elimination. So without wasting any time, let's begin with this. Yes, first of all I would like to tell you what is the concept excretory product and their elimination. Yes, see, whatever food material we used to eat, getting whatever food material we used to eat, from that food material we are obtaining two products. One product is nothing but energy and second product is nothing but वेस्ट. आर यू गाइस गेटिंग? हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं उसमें से हमें दो चीजें मिलती है. एक चीज होती है एनर्जी और दूसरी चीज होती है वेस्ट. अब एनर्जी मतलब क्या? यू कैन से एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज. क्लियर? सपोज वी आर ईटिंग अ कार्बोहाइड्रेट फूड मटेरियल, सो वी आर गेटिंग अ ग्लूकोज. इज इट क्लियर? वी आर गेटिंग अ ग्लूकोज, वी आर गेटिंग अमाइनो एसिड, we are getting a fatty acid, but all these products are finally converted into ATP molecule to what we call energy. Clear? हम जो भी फूड खाते हैं वो फूड मटेरियल अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उससे हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड है तो उसका सिंपल फूड होगा ग्लूकोज. अगर हम प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो हमें अमाइनो एसिड मिलेंगे, और अगर हम लिपिड ऑयल्स ज्यादा खाते हैं तो हमें फैटी एसिड मिलेगा. लेकिन फाइनली इन तीनों में से बनेगा क्या? इन तीनों में से बनेगा एटीपी. और एटीपी क्या है? एटीपी एक प्रकार की एनर्जी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, जो हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है. यस, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी आर गेटिंग अ ग्लूकोज, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन वी आर गेटिंग अमाइनो एसिड, एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ लिपिड एंड ऑयल्स वी आर गेटिंग fatty acid. But final conversion of all these simple molecule will convert into ATP molecule, and that is called energy. But our chapter is based on excretory product, and what is that excretory product? Waste material. Now I'll tell you what kind of a waste material we are talking about. We are not talking about waste material as a solid pellets. We are not talking about waste material as solid pellet. What is a solid pellets? सॉलिड पिलेट मतलब हमारा लेट्रिन, हमारा मल, या तो हम कह ले उसे स्टूल या तो फीकल मटेरियल. यस, हमारा बॉडी में फूड मटेरियल में से जो एनर्जी बनती है उसको छोड़ के जो हमारा लेट्रिन बनता है, वेस्ट मटेरियल, उसे हम कहेंगे सॉलिड पिलेट्स. लेकिन ये वाला जो चैप्टर है वो सॉलिड पिलेट्स के ऊपर नहीं है, बिकॉज सॉलिड पिलेट और लेट्रिन और फीकल मैटर वी आर टॉकिंग इन डाइजेशन चैप्टर. यस, so here our topic is not about solid pellet, but solid pellet is also one type of a waste material, therefore it was my duty to tell you. Clear everyone? We are talking about waste material that is in the form of a urine, that is in the form of urine. So our product is nothing but the urine. And if I tell you what is excretory product, what is excretory product? Excretory product is nothing but the urine, to which we are going to excrete it outside. Are you getting, guys? So excrete product here our is urine. So now we have got the now we have got the product excretory product as a urine. Now we are interested to eliminate it out. तो हमारा चैप्टर का नाम समझ लीजिए आप, excretory product. What is our excretory product? Urine. And what is meant by elimination? Elimination means to throw. Elimination means to throw out or throw out. हम ऐसे कहते हैं to remove out. That is called as a elimination. Elimination is a biological word, but common meaning of elimination means to remove out.
तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब हमारी बॉडी में तैयार होने वाला यूरिन, और इलिमिनेशन मतलब उसे बाहर फेंकना। तो हमारा ये जो चैप्टर है पूरा चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि हम जो भी चीजें खाते हैं उन चीजों में से हमें या तो ग्लूकोज या तो अमाइनो एसिड या तो फैटी एसिड मिलता है, और इन तीनों का कन्वर्जन फाइनली एटीपी में बनता है। और दूसरा हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल तैयार होता है उस वेस्ट मटेरियल का हम किस में कन्वर्जन कर देते हैं, यूरिन में। और इस वाले यूरिन को हम हमारी बॉडी में से इलिमिनेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, बाहर की तरफ फेंक देते हैं। तो ये है हमारे चैप्टर का मतलब, ये है हमारे चैप्टर के टाइटल का मतलब। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मींस वेस्ट प्रोडक्ट and their elimination means to remove them out of our body, that is called as a elimination. So let's begin this in detail. I was explaining the just the title of chapter. हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर है आज का, ये पूरा का पूरा लेक्चर हम इंट्रोडक्शन में करेंगे, यस और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे की कंसेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं। See, I'll tell you, every organism is not producing the same waste material. Yes, every organism is not producing the same waste material, neither in the same quantity nor in the same form. इस मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं वो सभी के सभी एनिमल सेम वेस्ट प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ना तो सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, ना तो सेम टाइप में प्रोड्यूस करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एनिमल है वो 3 प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मैं इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में आज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, और एक एक्स्ट्रा भी एक वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं उसे भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। सो आई टेल यू हियर, आई टेल यू yes, mode of excretion। आप इसे कह सकते हो मोड ऑफ एक्सक्रिएशन, या तो आप इसे कह सकते हो टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन, मोड ऑफ एक्सक्रिएशन और टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन। आई टेल यू बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन और 3 टाइप ऑफ थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट। आपने सुना होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है, ह्यूमन बीइंग का यूरिया, ठीक है। तो इस दुनिया में जितने भी एनिमल है उन सभी अगर एनिमल को हम इकट्ठा कर लें तो 3 प्रकार के या तो 4 प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आते हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या तो अमोनिया, या तो हो सकते हैं यूरिया, या तो हो सकते हैं यूरिक एसिड, या तो एक्स्ट्रा हो सकता है कोई ग्वानिन। ग्वानिन जो नाइट्रोजन बेस होता है, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ग्वानिन होता है, कोई कोई एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ग्वानिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आखिरी में इसी टॉपिक में। सो ऑलमोस्ट ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू मेन 3 कैटेगरी, आइदर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। लेट्स टॉक इन डिटेल। व्हाट इज मीन बाय मोड ऑफ एक्सक्रिएशन? Mode of excretion is nothing but the method how we excrete the waste product based on which type of a waste product. So I'll tell you, all the animals are divided into 3 category, like amonotelic, yes, ureotelic and uricotelic. Now see, if the animals are excreting waste product is ammonia, then they are called amonotelic animal, and the process of excreting ammonia is known as a amonotelism. समझ रहे हैं आप लोगों को मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको? मतलब जो एनिमल अपनी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में बाहर फेंकता है उन एनिमल को हम कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। If an animal are excreting ammonia as their waste material, then such animals are called as a amonotelic animal. These animals are called amonotelic animal. Are you getting guys? Animals are called as a amonotelic animal. मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ because मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए. Such animals are called as a
अमोनोटेलिक एनिमल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। अब मैं आपको एक चीज सिंपली समझाता हूं। अगर कोई फिश है, अगर वो अमोनिया रिमूव करती है तो हम उस फिश को क्या कहेंगे? दैट फिश इज अमोनोटेलिक, बिकॉज उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है अमोनिया, और उनकी अमोनिया को बाहर फेंकने की प्रोसेस को, टेक्निक को हम कहेंगे अमोनोटेलिज्म। अब जो एनिमल यूरिया बाहर फेंकते हैं, हम उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे यूरियोटेलिक, और उनकी प्रोसेस को हम कहेंगे यूरियोटेलिज्म। और सेम उसी की तरह जो एनिमल यूरिक एसिड बाहर फेंकते हैं उनको हम कहेंगे वेस्ट प्रोडक्ट, उनको हम कहेंगे यूरिकोटेलिक, और उनकी ये प्रोसेस को हम कहेंगे यूरिकोटेलिज्म। So simple is that if animal remove ammonia, they are called ammoniotelic animal, and the process of removing of ammonia is called ammonotelism. If animal remove urea, then they are called uriotelic animal, and the process is called uriotelicism. If animal remove uric acid, then they are called uricotelic animal, and the process is called uricotelism. जो एनिमल अमोनिया वेस्ट बाहर फेंकते हैं हम उनको कहेंगे उनको हम कहेंगे अमोनोटेलिक, और उनकी ये प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनोटेलिज्म। जो एनिमल यूरिया को बाहर फेंकते हैं हम उनको कहते हैं यूरियोटेलिक, और उनकी इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरियोटेलिज्म। और जो एनिमल यूरिक एसिड को बाहर फेंकते हैं हम उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक, और इनकी इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। तो ये 3 प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट हैं। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, हमें ये चीज देखनी है, ठीक है? ये वेस्ट प्रोडक्ट बनते कैसे हैं? सो आई टेल यू गाइस, व्हेन वी आर ईटिंग, जस्ट मिनट, आई नीड सम स्पेस। See, when we are eating too much of a protein, we are converting this protein into what? अमाइनो एसिड। जब हम प्रोटीन ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो उस समय हमारी बॉडी में प्रोटीन का कन्वर्जन हो जाता है अमाइनो एसिड में। लेकिन अगर अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में अगर एक्सेस है, इफ अमाइनो एसिड्स आर एक्सेस इन आवर बॉडी, अगर अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में है तो हम क्या करते हैं? अमाइनो एसिड को लिवर में लेके जाने के बाद एक प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। और डीअमाइनेशन होने के बाद उस प्रोडक्ट का कन्वर्जन किसमें हो जाता है? अमाइनो एसिड का एक तो कन्वर्जन उसका हो जाता है अमोनिया में, एक तो कन्वर्जन हो जाता है उसका यूरिया में, एक तो उसका कन्वर्जन हो जाता है यूरिक एसिड में। समझ रहे हो आप? मान लो अगर मैं पल्सेस ज्यादा खाता हूं, ऐसी चीजें खाता हूं जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा है। अगर प्रोटीन मैं ज्यादा खा रहा हूं तो ऑब्वियसली प्रोटीन का सिंपल फॉर्म मतलब अमाइनो एसिड ये भी ज्यादा बनेगा मेरी बॉडी में। समझ रहे हो आप? अगर मैं प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं, प्रोटीन ज्यादा खा रहा हूं, तो मेरी बॉडी में अमाइनो एसिड की क्वांटिटी भी काफी ज्यादा बनेगी। और अगर अमाइनो एसिड क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें अमाइनो एसिड का कन्वर्जन वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। क्योंकि ये वाले वो अमाइनो एसिड है जो कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हमें जितने चाहिए उससे भी ज्यादा है, इसके लिए हमें उनको बाहर फेंकना पड़ेगा। आर यू गेटिंग गाइस? इफ वी आर ईटिंग too much of protein, then we are converting this extra protein or too much of protein into the amino acid. But suppose if a normal amino acid quantity is this much and you are producing this, means you are generating this much of amino acid, so you are having more amino acid as compared to your normal level. So you have to remove this remaining extra amino acid out of your body. How you will remove? You have to convert this amino acid into the waste product. And how you will convert this? You will convert this amino acid into the waste product like ammonia or either urea or either uric acid. By which process? By the process called deamination. And where does it takes place? It takes place in liver. हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड को हम लिवर में ट्रांसफर करते हैं, और लिवर में एक प्रोसेस होती है डीअमाइनेशन, और डीअमाइनेशन प्रोसेस होने के बाद
अमोनिया का अमाइनो एसिड का एक तो कन्वर्जन होता है अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट में, या तो कन्वर्जन होता है यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट में, या तो कन्वर्जन होता है यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट में। अब हम ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड का कन्वर्जन अमोनिया में क्यों होता है, या तो यूरिया में क्यों होता है, यूरिक एसिड में। कौन सी ऐसी रीजन है कि वो इन 3 प्रकार के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, एक प्रकार के प्रोडक्ट में क्यों नहीं कन्वर्ट करते? तो इसका रीजन हम जान लेते हैं। एक चीज याद रखिए आप, ये तीनों का तीनों मतलब अमाइनो एसिड का कन्वर्जन अमोनिया में हो या यूरिया में हो या यूरिक एसिड में हो, प्रोसेस सेम ही होती है, डीअमाइनेशन, और ये लिवर के अंदर ही होती है। ठीक है, लिवर के अंदर ही ये प्रोसेस होती है। सो लेट्स बिगिन नाउ गाइस। रिमेंबर देयर आर सर्टेन एनिमल which are requiring around 300 to 500 ml of water for excreting 1 gram of ammonia। ये देखिए, अमोनिया को एज अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिएट करने के लिए कितना पानी लगता है? पानी लगता है 300 to 500 ml। इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट गाइस, इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज अ ह्यूज वन। अब आप ये सोचिए, एक ऐसा एनिमल है जो अपनी बॉडी में से 10 ग्राम अमोनिया पर डे को बाहर निकालता है, 10 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम अमोनिया को डाइल्यूट करके वेस्ट प्रोडक्ट बना के बाहर फेंकने के लिए 300 से 500 ml लग रहा है, तो 10 ग्राम अमोनिया को कितना लगेगा? ऑलमोस्ट into 10 means around 3000 to the 5000 means around 3 लीटर to 5 लीटर। अगर हम हमारी बॉडी में से 3 से 5 लीटर से भी यूरिन बना के बाहर फेंकेंगे तो हमारी बॉडी तो डिहाइड्रेट हो जाएगी ना, ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली जो अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर आता भी नहीं है। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट वही एनिमल बाहर फेंकते हैं जो कि ऑलरेडी पानी के अंदर रहते हैं। यस, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल बोनी फिशेस, देन यू कैन से aquatic amphibians। अब आप कहोगे कि एम्फीबियन का मतलब तो पानी और जमीन पे दोनों होता है, तो aquatic amphibian का ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। लेकिन aquatic amphibian का मतलब ऐसा होता है जो ज्यादातर पानी में रहे और लैंड सरफेस पे जमीन पे कम आए, उनको हम कहते हैं aquatic amphibian। दे आर amphibian only but they are most probably aquatic animal। yes means उनकी पानी में लाइफ ज्यादा निकलती है। क्लियर एवरीवन? एंड some aquatic insects। Now what are these? All these are the examples of a ammoniotelic animal, means all these animals are removing waste product in the form of ammonia, they are converting their extra amino acid into the ammonia। Why they are coming under ammoniotelic animal? Just because they all are found in the water। ये वो सभी एनिमल है जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, और पानी के अंदर पाए जाते हैं इसके लिए वो अमोनोटेलिक हैं। इनके बॉडी के अंदर इतना पानी है, कि वो 300 से 500 ml एक ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर इनकी बॉडी में नियर अबाउट 10 ग्राम भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है पर डे में, तो भी वो इतना 3 लीटर से 5 लीटर अमोनिया वो बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी के अंदर होते हैं और इनको डिहाइड्रेशन होने का चांसेस काफी कम होता है। नाउ आई विल टेल यू अमोनिया इज बेसिकली soluble in water, it is easily soluble in water, and animal excrete ammonia in the form of animal excrete ammonia by the process of diffusion। either कुछ एनिमल अमोनिया अपने बॉडी सरफेस से बाहर रिमूव करते हैं, और जैसे फिशेस होते हैं, फिशेस अपने गिल्स के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एनिमल अमोनिया को अपने बॉडी सरफेस के थ्रू बाहर फेंकते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस है। लेकिन कुछ एनिमल फिशेस जैसे होते हैं वो अपने गिल स्लिट्स के थ्रू अमोनिया को बाहर फेंकते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल। यस, या मैं एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है ऐसा। अब मैं आपको ये बता दूं, एक क्लियरली चीज समझा दूं। जस्ट इमेजिन दिस इज द सेल एंड दिस वन इज अनदर सेल, दीस आर सो मेनी सेल एंड दिस बिकम्स नाउ टिश्यू। यस, व्हाई आई एम शोइंग यू दिस?
अमोनिया इज हाईली टॉक्सिकेटेड। अमोनिया काफी विषारी होता है, काफी पॉइजनस होता है। अगर हम अमोनिया को रेगुलर टाइम में, मतलब जितने टाइम में अमोनिया को बाहर फेंकना चाहिए, अगर वो टाइम में अगर हम अमोनिया को बाहर नहीं फेंकते तो क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है? अमोनिया हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में चला जाता है और ये टॉक्सिकेटेड होने के कारण पूरे टिश्यू को क्या कर सकता है? वो डैमेज कर सकता है। और अगर ये समझ लो अगर टिश्यू डैमेज हो गया तो वो टिश्यू का जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी में होगा नहीं, और मे भी हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो बनने होते हैं वो नहीं बनेंगे। So it is very dangerous. So it is very important to remove the ammonia at a regular interval of time. But water required by ammonia, water required by this ammonotelic animal is very huge one. Now I'll tell you, every animal cannot afford this much amount of water. सभी एनिमल इतना 300 से 500 ml वाटर को अफोर्ड नहीं कर सकते रिमूव करने के लिए। तो वो एनिमल क्या करते हैं? वो एनिमल अमाइनो एसिड का कन्वर्जन अमोनिया में नहीं करते हैं, वो एनिमल डायरेक्टली अमाइनो एसिड का कन्वर्जन यूरिया में करते हैं। तो जो एनिमल अमाइनो एसिड का कन्वर्जन यूरिया में करते हैं हम उनको कहते हैं यूरियोटेलिक, और उनकी प्रोसेस को हम कहते हैं यूरियोटेलिज्म। अब मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज ओनली 50 ml of water is required for 50 ml of water required to form excretory product as urea, and for 1 gram of urea required 50 ml of water। जैसे हमने यहाँ पे देखा 1 ग्राम अमोनिया को वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए कितना वाटर लगता है? 300 to 500 ml फॉर 1 ग्राम। लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड ओनली 50 ml ऑफ वाटर। यस, हमने पहले मेंशन कर दिया। तो 1 ग्राम यूरिया का वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 50 ml लगता है। अगर आप ये सोचो कि अगर किसी एनिमल के अंदर 10 ग्राम यूरिया प्रोड्यूस होता है पर डे को, 10 ग्राम यूरिया प्रोड्यूस होता है पर डे को, तो उनके अंदर कितना वाटर लगेगा? 10 ग्राम अगर प्रोड्यूस होता है तो नियर अबाउट 500 ml लगेगा। मैं आपको बता देता हूं कि अब ह्यूमन बीइंग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, लाइक मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, amphibian, and you can say some marine animals। कुछ ऐसे मराइन एनिमल है, कुछ ऐसे मराइन फिशेस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। मैमल्स मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, अब यहाँ पे देखिए आप, हमने कहा एक्वाटिक एम्फीबियन, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी आते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन एक्वाटिक एम्फीबियन मतलब जो ज्यादातर अपनी लाइफ पानी में बिताते हैं और कुछ ही समय के लिए वो जमीन पे आते हैं। और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन मतलब जो ज्यादातर अपनी लाइफ जमीन पे बिताते हैं और कुछ समय के लिए वो पानी में भी जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। तो मैमल, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मराइन एनिमल, ये एनिमल वो कैटेगरी में आते हैं जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, तो ये यूरियोटेलिक एनिमल है। मैमल में हम ह्यूमन बीइंग भी आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग कितना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब कितना यूरिया प्रोड्यूस करते हैं पर डे में। सो वी ह्यूमन बीइंग आर एक्सक्रीटिंग का मतलब डायरेक्ट यूरिन हो जाता है। वी ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोड्यूसिंग यूरिया अराउंड 28 to 30 grams पर डे, 28 to 30 grams पर डे। हम ये मान के चलते हैं अगर हम पर डे को 30 ग्राम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कितना वाटर लगेगा? फॉर 1 gram of urea we are requiring 50 ml of water, so obviously for 30 gram in 50 into 30 it will be what? It will be around 1800। तो हम नियर अबाउट 1.8 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं पर डे, मतलब वी आर जनरेटिंग अराउंड 1.8 लीटर और 1800 ml यूरिन पर डे। नाउ ये जो 1800 ml है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इतना सुन लीजिए, ये 1800 ml में से 1500 ml नियर अबाउट यूरिन होता है और 300 जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा पर्सपायरेशन, स्किन से जो ये निकलता है पसीना, पर्सपायरेशन,
स्वेट जिसे हम कहते हैं, तो वो 300 ml वो होता है स्वेट और नियर अबाउट 1500 ml होता है यूरिन। सो टोटल 1800 यूरिन हम पर डे को बना सकते हैं हमारी बॉडी में। 1800 ml वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, 300 स्वेट बन जाता है, 1500 ml यूरिन बन जाता है। सो दिस इज अबाउट यूरिया। यूरिया इज अ लेस टॉक्सिकेटेड compared to what? Compared to ammonia. Ammonia is a highly toxicated. Urea is a less toxicated compared to ammonia. But urea is a more toxicated compared to the uric acid. Now there are certain animals which are not able to afford even 50 ml of water. ऐसे भी एनिमल है जो 50 ml वाटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर 50 ml वाटर भी ये एनिमल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, 50 ml वाटर भी अगर अफोर्ड नहीं कर पाते 1 ग्राम को डाइल्यूट करने के लिए, तो वो एनिमल क्या करेंगे? वो एनिमल अमाइनो एसिड का कन्वर्जन अमाइनो एसिड का कन्वर्जन अमोनिया में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, ना तो अमाइनो एसिड का कन्वर्जन वो यूरिया में कन्वर्ट करेंगे, वो डायरेक्टली अमाइनो एसिड का कन्वर्जन किस में करेंगे? यूरिक एसिड में। क्यों? जस्ट बिकॉज 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड required only 10 ml of water to form excretory product, ठीक है, to form excretory product। मतलब सिर्फ 10 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम के लिए सिर्फ 10 ml वाटर। यहां पे देखिए 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 300 से 500 ml पानी। यहाँ पे 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए 50 ml ऑफ वाटर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 10 ml ऑफ वाटर लग रहा है। ओनली 10 ml ऑफ वाटर टू फॉर्म एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट। अब आप ये समझ रहे हो कि ये वाले एनिमल वो होंगे जो पानी में रहेंगे, लेकिन ये वाले वो एनिमल होंगे जो ऐसी कंडीशन पे पाए जाएंगे, ऐसी एरिया में पाए जाएंगे जहां पे वाटर की ऑलरेडी काफी डिफिशियंसी है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट तो हम कहते हैं बर्ड्स, एग्जांपल इनके बर्ड्स, कैमल, लिजार्ड, ठीक है, इंसेक्ट। तो ये वाले वो एनिमल है जो सिर्फ यूरिक एसिड रिमूव करते हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते हैं, ना ही वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। मैं आपको कहता हूं 2016 में आई थिंक सो नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन, सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन व्हाट? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ऑप्शन में ऐसा आता है लेकिन ये रॉन्ग होता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इज नॉट बेस्ड, दीज आर द प्रोडक्ट। Excretory product are based on, or excretory mode is based on number of animal or type of animal and their habitat. For example अगर हम देखें camel is not found in the water, otherwise camel अगर पानी में होते तो वो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि पानी ज्यादा होता है। camel एक ऐसी मल है जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करने में काफी फेमस है, वो अपनी बॉडी में वाटर को मेंटेन करने में काफी फेमस है। तो वो वाटर को मेंटेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे पानी काफी कम होता है, ये डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल है। तो वो अगर पानी को वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो ऐसा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे जिसमें काफी कम पानी लगेगा। सो देयरफॉर camels are producing waste material as a uric acid, not ammonia nor a urea. But if you talk about the bony fishes, so bony fishes have ample of water, they have a maximum of water, so they are not producing their waste product as a uric acid, neither their product as a urea, they are producing waste material as ammonia. So it's a simple very logic. Clear guys? हम हमारी बॉडी में नियर अबाउट 1.8 लीटर यूरिन को बाहर फेंक सकते हैं, इसके लिए हम यूरियोटेरिक एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको एक फोर्थ एग्जांपल भी बता रहा हूं जो इसकी कैटेगरी में नहीं बैठता है, वो एक्स्ट्रा है। व्हाट इज मीन बाय ग्वानोटेरिक? See guys, guanine is nothing but first let me see, are you able to see this properly? Yes, guanine is nothing but the one type of a nitrogenous waste material, sorry,
Guanine is one type of a nitrogenous waste material. ये सभी कौन है? All these are nothing but nitrogenous waste product और nitrogenous waste material. Ammonia, यूरिया और यूरिक एसिड, इवन द ग्वानिन, ये चारों के चारों क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, चारों के चारों नाइट्रोजन. अब ये सुनिए, ग्वानिन इज अ वन टाइप ऑफ अ amine, guanine is a one type of a, you can say, nitrogenous base which is found in DNA, which is found in DNA as well as RNA. It is always attached with a cytosine by triple bond. There are certain animals which are removing guanine as a waste material, and these animals are called as a guanotelic animal, and the process is called guanotelism. Example: scorpion, spider and penguin. Scorpion, spider and penguin are the examples of what? Which category? They are the examples of what? Guanotelism. So all these are nothing but the type of a nitrogenous waste material, and this topic is about mode of excretion and mode of excretory product. अब हम आगे बढ़ते हैं. आप सोचोगे इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है. हाँ, हमारे एनसीईआरटी में इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस चैप्टर के बारे में. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. excretory organs or excretory structures. अब आपको याद होगा जैसे हमने रेस्पिरेटरी सरफेस पढ़ा था, तो रेस्पिरेटरी सरफेस का दूसरा नाम क्या था? रेस्पिरेटरी ऑर्गन. मतलब the organ which is responsible for breathing, it is called respiratory surface or respiratory organ. Same है. आज का हमारा जो टॉपिक क्या है वो है excretory organ या तो excretory surface. मतलब क्या हुआ? excretory organ or excretory surface means organ which we are using for excretion of waste product. It is called excretory organ or excretory surface. जो ऑर्गन हम एक्सक्रिएशन मतलब वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, यूरिन को बाहर फेंकने के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. सो लेट्स बिगिन विद वन बाय वन. मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं. लाइक किडनी, हमें एनसीईआरटी में किडनी के बारे में नहीं दिया हुआ है इतना डिटेल, लेकिन मतलब इंट्रोडक्शन ना, डिटेल में तो मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ही किडनी है. हमारे इस चैप्टर का जो मेन हीरो है वो किडनी है. किडनी और स्पेशली नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. सो पहला जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, और वो जनरली हमें ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है. सो वी ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सक्रीटिंग अवर यूरिया इन द फॉर्म कुछ भी हो, यूरिया है. और हमें हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी. हम एनसीईआरटी में जो बाकी इंट्रोडक्शन और डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए मैं आपको उनके बारे में बताता हूं. जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया ऑल्सो नोन एज अ फ्लेम सेल्स. ये हमें एनिमल किंगडम में भी एक्सप्लेन किया हुआ है. प्रोटोनेफ्रिडिया ऑल्सो नोन एज अ फ्लेम सेल्स. दिस इज जनरली फाउंड इन एक्चुअली प्रोटोनेफ्रिडिया अगर हम ये देखें तो ये हमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पाए जाते हैं. यस, जस्ट लाइक प्लेनेरिया मींस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फ्लैट वर्म्स. तो फ्लैट वर्म को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द प्लेटीहेल्मिन्थ्स. फ्लैट वर्म्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द प्लेटीहेल्मिन्थ्स. And these platyhelminths are responsible for producing waste product through the protonephridia or you can say flame cells.
तो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स क्या है? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कौन सी कैटेगरी के एनिमल में? प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम में। और प्लेटीहेल्मिन्थ को हम कॉमनली कहते हैं फ्लैटवर्म। उनके एग्जांपल्स आते हैं प्लेनेरिया। नाउ अगर हम ये डिस्कस करें कि प्लेटीहेल्मिन्थ में ये जो फ्लेम सेल्स है इनका मेन काम क्या है? सो दे आर रिस्पांसिबल फॉर फ्लूइड एंड आयंस osmoregulation. What is meant by osmoregulation? Osmoregulation means balance of water and salt. हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना, इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऑस्मोरेगुलेशन इज नथिंग बट बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड एज अ वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। तो हमारी बॉडी में, मतलब हमारी इन द सेंस प्लेनेरिया की बॉडी में फ्लूइड और आयंस को बैलेंस करना, ऑस्मोरेगुलेशन करना। फ्लूइड मतलब एक प्रकार से आप कह लो वाटर या तो सैप, वाटर प्लस मिनरल, और आयंस एक प्रकार के मिनरल है। तो वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना मतलब ऑस्मोरेगुलेशंस करना। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? सो आई विल टेल यू थर्ड वन, नेफ्रिडिया। So what is nephridia? अब प्रोटोनेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया में क्या फर्क है पहले समझ लीजिए। As the evolution was moving, जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, फिर देन हायर इनवर्टिब्रेट्स, उसके बाद वर्टिब्रेट्स, और उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग मैमल तक आए। तो जैसे जैसे ये इवोल्यूशन होते गया तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी चेंजेस आते गए। तो जैसे कुछ एनिमल के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थ फ्लेम सेल्स है, तो वैसे ही कुछ एनिमल्स के अंदर नेफ्रिडिया है। आर यू गेटिंग गाइस? So nephridia is generally found in the earthworm. It is also found in some other annelids. Yes, earthworm के अंदर nephridia पाया जाता है और बाकी सारे कुछ other annelids हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। And this is also responsible for fluid एंड आयंस बैलेंस। इनका काम भी फ्लूइड और आयंस को बैलेंस करना है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द यू कैन से इंसेक्ट्स, सो दे आर हैविंग माल्फिजियन ट्यूबल्स। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। हमने 11th स्टैंडर्ड में कॉकरोच के बारे में पढ़ा है, तो वहां पे क्या होता है? कॉकरोचेस आर हैविंग 150 येलो कलर्ड माल्फिजियन ट्यूबल्स। हमने पढ़ा हुआ है कॉकरोचेस आर हैविंग 150 येलो कलर्ड माल्फिजियन ट्यूबल्स व्हिच आर one kind of excretory organ and they are pouring their waste product in the form of a uric acid. So cockroach uric acid रिमूव करते हैं और उनका जो ऑर्गन होता है वो होता है माल्फिजियन ट्यूबल्स। सो ये कुछ ऑर्गेनिज्म में मैं आपको और एक बताता हूँ, जस्ट लाइक antennal glands, also called green gland. This is found in crustacean, example prawn. क्रस्टेशियन कैटेगरी जो आती है जिसके अंदर एग्जांपल आते हैं प्रॉन। सो प्रॉन के अंदर ग्लैंड कौन सी? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? एंटीनल ग्लैंड, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से भी पहचानते हैं। एंटीनल ग्लैंड आल्सो नोन एज अ ग्रीन ग्लैंड, इट इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन दी प्रॉन। अगर हम फिश के बारे में बात करें तो फिश के अंदर गिल स्लिट्स के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किया जाता है, गिल स्लिट्स के थ्रू, बिकॉज वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। सो गाइस, दिस टॉपिक वाज इंट्रोडक्शन टू आवर चैप्टर that is a excretive product and their elimination, chapter number 19 from the 11th standard CBSE. And in this introductory chapter, topic, I have explained you the introduction, I have explained you the title of you can say name of a chapter, that is what is the excreted product and what is their elimination. Then I told you mode of excretion, ammonotelism, ureotelism, uricotelism and guanotelism, and at the end I will explain you the excretive organ and excretive structure. Thank you so much for watching this video. If you truly like this video, then please hit the like button and have a comment if you wanted to say something, if you wanted to ask something, and please don't forget to subscribe and press the bell icon if you are new to our channel. Thank you. Have a good day.